Hi everyone, let's learn one quick chemistry concept in just a few minutes. So, the topic is coordination compound, and the coordination compound are those in which the central metal atom is surrounded by ligands. For example, CuNH36 and Cl3, right? तो व्हाट इज़ लीगेंड? लीगेंड वो चीज़ है जो अपने इलेक्ट्रॉन्स पेयर को डोनेट करते हैं। लाइक यहाँ पे क्या चार्ज है, Cn नेगेटिव, H2O, NH3, ये सारे के सारे क्या बिहेव कर रहे हैं? लीगेंड बिहेव कर रहे हैं। और कोऑर्डिनेशन नंबर वो होता है कि वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डोनर्स कितने हैं। अब राइट, डोनर इनटू साथ में क्या आ जाता है आपका डेंसिटी, राइट तो जितनी डेंसिटी है और कितने डोनर्स अवेलेबल है वहाँ पे वो हमारे हो जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, अगर यहाँ पे जो हमारा NH3 है दैट इज़ अ मोनोडेंटेट, तो यहाँ पे लीगेंड कितने हैं 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। सेंट्रल मेटल एटम जो होता है वो हमेशा सराउंड करता है किससे? लीगेंड से, राइट और ये जो मेटल होती है हमेशा क्या आती है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स के आएंगे। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है? ये वाला जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो भी है एलिमेंट्स है जिसमें तुम लोग के मेटल आएंगी और लीगेंड आएंगे, राइट। काउंटर आयन जो कि इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के आउटसाइड प्रेजेंट होता है दैट इज अ काउंटर आयन विच बैलेंस द चार्ज ऑन द स्फीयर। ठीक है, और कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो कि तुम लोगों की होल कॉम्प्लेक्स मेटल और लिगेंड पे कितना चार्ज है दैट इज़ अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी। एंड कितने टाइप्स के लिगेंड होते हैं दैट इज़ अ मोनोडेंटेट, बाय, पॉली एंड एम्बीडेंटेड। मोनो मीन्स एक पेयर डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन का, 2 पेयर फॉर बाय एंड मैनी पेयर फॉर पॉलीडेंटेट। एंड एम्बीडेंटेट का मतलब ये होता है कि वहाँ पे जैसे यहाँ NO2 नेगेटिव है तो ये बॉन्ड N के साथ भी बना सकता है, O के साथ भी बना सकता है, तो दोनों जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं बट लेकिन एक ही एक टाइम पे बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, जैसे अगर C ट्रिपल बॉन्ड N, तो N आगे फर्दर बॉन्ड बनाता है। इसी केस में अगर N इस तरह से बॉन्डिंग हो जाती है तो यहाँ पे ये चीज़ बॉन्ड बना रही है दैट इज़ अ केस ऑफ ambidentate. The next one is coordination number, and in coordination number is 2 if the geometry will be linear. And the example this one, 4 for tetrahedral and square planar, 6 for octahedral, right? The nomenclature rules are cation name is first then anion, ligand are named alphabetically, write A then B before metal, prefix mono, di, tri, tetra, penta and hexa. Ligand names neutral for NH3 that will also written as amine, aqua, carbonyl, they are neutral ligand. Anionic Cl negative, chloro, and Cn negative is anion, that is anionic ligand. Metal name in cationic complex same like potassium, calcium, these are a cationic complex. Anionic and with 8, this is important one for anionic complex. For example, CONH36Cl3, so first name of which one? Ligand, right? And the ligand is NH3 and which is neutral ligand and also is written as same, that is amine. कितने ligand है? 6, तो 6 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? हेक्सा amine. And this one is cobalt which is a D block element having atomic number is 27. And find out the oxidation state. This one is the oxidation state. And how to calculate the oxidation state? CO
NH3 6Cl3, right? So we can find out the oxidation state of CO, and it will be put on X, and NH3 is neutral, so there will be 0, and Cl negative, Cl3 will be an anionic complex having a -1 charge. X plus 6, 0 plus 3 minus 1 is equal to 0, and here X 6 into 0 is equal to 0, X plus minus 3 is equal to 0, and X is equal to plus 3. So the oxidation state will be plus 3. So it can be written in Roman letter and in brackets, that is a oxidation state, and Cl, which is behave as a counter ion, and we can write at last because it will be a negative, not a positive. It will be a cation, then it will be written at the starting, right? Because the cation will be written in the startings. So what is isomerism in coordination compound? First start with the structural isomerism. It can be difference in their structure, right? And different ion produced in solution, right? एग्जाम्पल है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म. अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ आयंस का एक्सचेंज, आयोनाइजेशन मतलब आयंस का एक्सचेंज हो रहा है. हम लोग Br को बाहर लेके जाएंगे और SO4 को अंदर लेके जाएंगे. सो हम लोगों का जो चार्ज है उनमें क्या आ जाएगा, वेरिएशन आ जाएगा. SO4 पे कितना चार्ज होता है, 2 नेगेटिव, और Br पे कितना होता है, 1 नेगेटिव चार्ज आता है. तो हम लोगों को पूरे के पूरे चार्ज में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा. हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, राइट? तो इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हम लोग जो एक्सचेंज कर देते हैं, जो कि रिप्रेजेंट करता है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म. आइसोमेरिज्म क्या बोलता है कि हम लोगों का फॉर्मूला तो सेम रहेगा, बट लेकिन डिफरेंस किस में आएगा, स्ट्रक्चर में आएगा. नेक्स्ट है लिंकेज आइसोमेरिज्म. इसमें भी हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे NO2 नेगेटिव है, मोस्टली एग्जाम्पल किसका आएगा, एम्बीडेंटेट लिगेंड का आएगा कि फर्स्ट बॉन्ड हम लोग कभी N के साथ बना सकते हैं तो कभी हम लोग ऑक्सीजन के साथ बनाएंगे, या Cn नेगेटिव ले लेंगे तो बॉन्ड विद N, और दिस विल बी लाइक दैट. ठीक है, तो दिस विल बी द एग्जाम्पल ऑफ लिंकेज आइसोमेरिज्म. नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म. द एक्सचेंज ऑफ लिगेंड बिटवीन टू मेटल आयन, राइट? जो भी हम लोग के लिगेंड हैं, जो भी डोनर्स हैं, उन लोगों के बीच में क्या रहेगा, एक्सचेंज रहेगा. नेक्स्ट आता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म. तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हम लोग के 2 इंपॉर्टेंट आइसोमेरिज्म है, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, राइट? सिस मीन्स लाइक platinum at the center which is a metal present in a D block element series. और अगर हम लोगों का NH3 और इस तरह से हम लोग NH3 बना रहे हैं और Cl बना रहे हैं, राइट? दे आर एट द सेम साइड, NH3 आर एट द सेम साइड. ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं सिस फॉर्म. और अगर ये वाली फॉर्म होती इस तरह से, प्लैटिनम NH3 and Cl, so this is in the opposite side, this will the form of trans, right? और जो हम लोगों का यहाँ पे आता है नेक्स्ट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, that will be form the non-superimposable mirror image chiral complex. chiral complex मतलब कि हम लोगों के सेंट्रल मेटल एटम के जो सराउंडिंग में लिगेंड प्रेजेंट है, ये वाले, ये सारे के सारे क्या होंगे, डिफरेंट होंगे एक दूसरे से. मिरर इमेजेस नहीं बनाएंगे, मतलब जैसे हम लोग का हाथ है वो मिरर इमेज नहीं देता है, जब हम उसको मिरर में देखेंगे दैट विल बी द नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज. नेक्स्ट टॉपिक इज बॉन्डिंग थ्योरीज. तो हम लोगों को फर्स्ट आता है दैट इज़ अ वर्नर थ्योरी, जो कि हम लोगों की बताती है प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी में, राइट? तो जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो हम लोगों के मोस्टली जो भी आते हैं वो लिगेंड्स आते हैं जो आयनाइजेबल होते हैं, और सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो हम लोगों का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कि कितने कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे, राइट? और नेक्स्ट हमारा आता है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी. तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी वो हम लोगों को बता दिया है हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप ऑफ द
कॉम्प्लेक्स, राइट। अगर हम लोगों का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो शेप क्या रहेगी, टेट्राहेड्रल। D2sp3 में ऑक्टाहेड्रल एंड DsP2 में स्क्वायर प्लेनर। नेक्स्ट टॉपिक इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, दैट इज अ CFT which explain the color, magnetism and stability, right। तो कलर हम लोगों को कैसे पता चलेगा, अगर ये जो हम लोग के डी ब्लॉक्स एलिमेंट हैं दैट विल हैविंग 5 ऑर्बिटल्स 1 2 3 4 5 and if the electron fill firstly parallel and they are single, that means they are paramagnetic, and if they are paramagnetic that means they are colored, right। And if all the orbitals, the 5 orbitals are fully filled, they do not have any space to fill the electrons in these orbitals, known as diamagnetic, and which is colorless compound, right। And also explain the magnetism, that is para and diamagnetic compound, and the diamagnetic are more stable and the full partially half filled also are stable, and this will not stable, it will be unstable compound, right। and d block split in 2 parts, right। जो हम लोगों के d ऑर्बिटल्स होते हैं 1 2 3 4 5, ये हम लोगों के 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाते हैं, राइट। तो 1 2 3 T2G है, देखो इसमें 3 चीज़ें ऐड हो रही हैं 1 2 3, तो 3 ऑर्बिटल्स नीचे आएंगे और 2 जो हैं वो ऊपर आएंगे। तो नीचे वाले को बोलते हैं हम T2G और ऊपर वाले को बोलते हैं EG से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। ठीक है, ये एनर्जी में जो है इसकी एनर्जी कम होती है T2G की, और EG की जो होती है वो हायर एनर्जी होती है, राइट। और अगर हम इसको टेट्राहेड्रल का कॉम्प्लेक्स ये होता है सिर्फ ऑक्टाहेड्रल के केस में। अगर हम टेट्राहेड्रल का केस लेते हैं तो यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा, जो ऊपर है वो 3 वाले आएंगे और नीचे वाले कितने आएंगे, 2 वाले आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे इसको बोलेंगे हम T2G और यहाँ बोलेंगे हम इसको EG बोलेंगे, राइट। फिर अब इसी में ही जो स्ट्रॉन्ग फील्ड आते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड मतलब यहाँ पे हम लोगों की जो पेयरिंग है वो पहले ग्राउंड में ही पूरे के पूरे फिल होंगे, आफ्टर दैट वो हायर लेवल में जाएंगे, ठीक है। तो पहले ही सारे फिल हो रहे हैं, इसलिए स्ट्रॉन्ग के केस में बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, राइट। और जो हम लोग के वीक लिगेंड होते हैं, वीक लिगेंड में कैसे फिलिंग होती है, वीक लिगेंड पहले हम लोगों का किस तरह होता है इधर बताते हैं आपको। जैसे यहाँ पे 1 2 3 1 2, तो पहले हम लोग ग्राउंड को सिंगल फिल करेंगे, आफ्टर दैट हम लोग हायर लेवल पे जाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, ग्राउंड में आते हैं। अगर इस तरह से फिलिंग कर रहे हैं तो दैट मीन्स हम लोग क्या जा रहे हैं, हायर लेवल में भी जा रहे हैं स्टार्टिंग में ही, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, राइट। दिस इज़ अ लो स्पिन एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। एंड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम लोगों की रहती है इस तरह से, जिसमें वाटर बिहेव करता है न्यूट्रल, और इस तरफ एनायनिक, और इस तरफ मोस्टली हम लोगों के क्या रहते हैं, जो लीगेंड्स आते हैं वो सारे के सारे लीगेंड्स की ही अरेंजमेंट है, ठीक है। कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्यों आता है कलर कॉम्प्लेक्स में, ड्यू टू डी ट्रांजिशन, ठीक है। जब ये सारे के सारे लाइट ऑब्जर्व करते हैं और इसकी वजह से जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो कलर देते हैं, और पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स होता है, बीच में आपस में क्या होता है, एक्सर्शन या ट्रांजिशंस होती हैं, राइट। एग्जाम्पल हम लोगों को दे रखा हुआ है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दिया है, पैरा एंड डायमैग्नेटिक क्या होता है, और इसको निकालने का फॉर्मूला होता है न्यू इज इक्वल टू √n+2। बोहर मैग्नेटॉन इसकी यूनिट है, बोहर मैग्नेटॉन। और जो ये n है इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। और क्या इसकी एप्लीकेशंस हैं, ये जो भी मेटल्स हैं ये कहीं ना कहीं हम लोगों की बॉडी में भी यूज़ रहती हैं या नेसेसिटी होती है हमारी बॉडी में। आयरन, हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, विटामिन्स
और कैटलिस्ट भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। निकल, प्लैटिनम, सिस्प्लैटिन जो होता है वो एंटी कैंसरस होता है और इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये EDTA, इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसिटिक एसिड, ये हम लोगों का हार्डनेस ऑफ वाटर को काउंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। Thank you for watching the video. If you like my video, please like, share and subscribe my channel. Thank you.